दूसरा, एक बड़ी बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ रहा है कि आज ही कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी भी यहां पर दौरे पर हैं और कुछ वक्त पहले वो रामबन में मुखातिब थे लोगों के साथ भी, मीडिया के साथ भी. And unfortunately, what he said, I think you have the answer to that, because today we live in an evidence-based era. It is not that what I say you would agree or what he says you would agree. It's an era of evidence-based facts. Tark, tathya, tulna. Even before I finish saying what I have said, a small child would take out a mobile from his pocket and check for the facts. Rahul Gandhi says कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और शुरू किया है. आई डोंट हैव टू आंसर दैट बिकॉज द आंसर इज विद यू. यू हैव बीन कवरिंग जम्मू कश्मीर, यू बीन कवरिंग कश्मीर वैली ओवर द लास्ट 30 years. आपने वो जमाना देखा. इन्हीं पार्टियों के द्वारा फैलाई गई नफरत की वजह से यहां पर दहशत पनपी, आतंक पनपा. For 30 long years we had to live in the nightmare of terrorism, militancy, perpetuated by hatred, perpetuated by communal disharmony, and ruining the inherent cultural fabric of Kashmir, because Kashmir was always known for composite culture. And this was a region of the country where we never had any kind of disharmony among the communities. Even following the पार्टीशन राइट्स इन 1947 महात्मा गांधी सेड कि यहां से मुझे रे ऑफ होप दिखाई देती है, रोशनी की किरण दिखाई देती है, क्योंकि यहां पर एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ था. उस पुरअमन कश्मीर को, उस अमन पसंद अवाम को आपने ऐसा जहर घोला अपनी छोटी सियासत की खातिर. एंड देन यू ऑल्सो डिड नॉट हेजिटेट ज्वाइनिंग हैंड्स विद द परपेट्रेटर्स फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान. And you ruined in the process 3 generations of Kashmiris over the last 3 decades. And जब इतनी मेहनत के बाद, इतनी मुशक्कत के बाद, after a lot of effort, after a lot of sincere endeavor, Prime Minister Modi has been able to restore that normalcy when you can, with liberty, move around in Lal Chowk whenever you want to have an ice cream, or in the evening, if you have the mood, you can go to Ahduz for a kebab. ये माहौल, ये मोदी जी की देन है. जब आपकी सरकार थी मरकज में, जब आपकी सरकार थी रियासत में, आप जरूरत नहीं करते थे अपने बंद कमरे से बाहर निकलने का. आप ही की सरकार मजबूर रखी थी कि आप बाहर नहीं जा सकते थे. आज मोदी जी की सरकार के चलते आपको इस तरह की आजादी है कि आप खुली फिजा में घूम सके. लेकिन हुआ क्या है कि 30 बरस तक उस दहशत की आड़ में 8-10% वोट की उस बराए नाम जमहूरियत के पर्दे में पुश्त दर पुश्त कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत चलाती रही. एंड व्हेन दैट मिथ हैज एक्सप्लोडेड, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इट टू बी रिस्टोर्ड अगेन. दे वांट टू पुश बैक जम्मू कश्मीर, particularly Kashmir Valley, into the same turmoil out of which Prime Minister Modi has pulled it out with tremendous effort. And I'm sure the common man walking in the streets of Srinagar will never allow that. This is a land of aspiration. Our youth is highly aspirational. He does not wish to miss the bus. Today, India is the 5th economy in the world. We are the 3rd startup system in the world. We have risen in the Global Innovation Index from 81 to 40. We are becoming the most favorite destination in the world, both for entrepreneurship, both for employment. And the Kashmiri youth, being aspirational, does not wish to miss that opportunity, nor do we have any right to deprive him of that. और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम कर रही है, ये मोदी जी की सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये संकेत दे रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वही दौर वापस आए, वही 8% वोटर हो. और इलेक्शन, ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन, टॉकिंग लाइक दिस इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. आई हैव बीन सेइंग अगेन एंड अगेन, I said, rising above the party lines, whatever be the party, I think the biggest celebration in Kashmir Valley today is that we have every political party coming out for campaign. And we have every section of society coming out to cast its vote.
That's how the vote percentage has gone up so high. Is that not something to celebrate? And it is happening in a very harmonious, composite manner. No stone pelting, no hartal. Do we regret this? Do we not want this? And are we ready once again to place the future of our children, next generation, at the altar of our politics? If that be so, I think we have to get rid of such political parties and politicians. The sooner we do, the better for all of us. और मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं. जैसे मैंने कहा कि आज के दौर में कश्मीर से एक कहावत बड़ी मशहूर थी. डॉक्टर अली हमारे पुराने साथी हैं, उस जमाने में उन्होंने देखा है कि हमारे यही सियासतदान कांग्रेस और इनके सहयोगी दलों के 3 बयान अपनी जेब में रखते थे. एक दे देते थे श्रीनगर में, दूसरा जम्मू पहुंचकर और तीसरा दिल्ली. और अखबार यहां पहुंचती थी 2 दिन के बाद. एक अब्दुल्ला सद हुआ करते थे, उनके यहां आती थी. 2 दिन के बाद दिल्ली का अखबार या चंडीगढ़ का 3 दिन के बाद. तब तक भूल जाते थे तीनों बयान और तीनों अवाम को गुमराह कर देते थे. आज थैंक्स टू गाइज लाइक यू, फ्रेंड्स लाइक यू, आज जो हम यहां बैठ करके कह रहे हैं बीजेपी के दफ्तर में श्रीनगर में, इसकी गूंज उसी वक्त कन्याकुमारी तक सुनाई देती है. और जैसे मैंने कहा, मेरी बात खत्म होने से पहले आप उसकी तस्दीक भी कर लेते हैं. सो रियल टाइम टेस्टिंग, रियल टाइम रिपोर्टिंग. लेकिन इनको, जैसे मैंने उस दिन कहा, some of these Kashmir-centric politicians are still trying the tricks of the last election, but the voter has moved on, the media has moved on. ये समझते हैं आज भी वो 3 बयानबाजी वाला माहौल और दौर जिंदा है, लेकिन आज वो नहीं. और मुझे यकीन है जो मोदी जी ने ये माहौल बहाल किया है, जिसमें पुरअमन तरीके से हमारा इलेक्शन होने वाला है. आज भी आपने देखा, दिस इज सेकंड लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट फेज. कितने पुरअमन तरीके से दिल खुश हो उठा वो नजारा देख करके कि एक ही वक्त में 3-4 पार्टियों के उम्मीदवार वहां पर अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करा रहे थे. इज देयर अ ग्रेटर सेलिब्रेशन, ग्रेटर जुबिलेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लैंड विच हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ दिस? और ऐसा कहना, इसका मतलब है कि आप कश्मीर और कश्मीर वासियों के दोस्त नहीं, दुश्मन हैं.